डायनेमिक्स ऑफ चेंज इन रूरल इंडिया। इतनी बातों को समझने के बाद, इतनी बातों को समझने के बाद ये जो कुछ भी हो रहा है वो अब हम लोग चेंज पर बातें करेंगे। आप जानते हैं कि हम शुरू में ही बोल चुके थे कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज मेरली अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। That direction may be positive or negative. It means this definition is given by W.F. Ogburn and Nimkov. These two thinkers have given this sort of definition that what is development. Although development is a broader word and it has so many meanings and the senses if you find it bookish. Then what to do? We have simplified the things for our definition sake. It means if you are a student of rural development, so people will be expecting what is rural and what is development. This is first. If you are a student of certificate rural development or postgraduate diploma rural development or MA in rural development. So it is very common, very usual that people will be asking you what is development. Then you will be saying some things like a generalistic man, जनरल पीपल, जनरल व्यूज। डेवलपमेंट यही होता है ना जहां से कच्ची सड़कें पक्की हो जाती है, जहां बिजली उजली का काम हो जाता है, जहां खेती बाड़ी बहुत बढ़िया से होता है, ये सब कुछ कुछ बातें आप कहने लगेंगे। But he will be asking that you have completed your PG diploma in rural development or masters in rural development. So after getting this masters in rural development, you will be eligible for MPhil PhD in rural development. So people will be expecting from you that what is actual words, actual definition of development. And if you are able to clear this thing, they will understand that you have studied something in a broader sense, in a big way or bookish way. So remember this. What is development? Development is merely, MERELY, merely a process of change in particular direction. Who has given this definition? W.F. Ogburn and Nimkov. So where it is written, where you will be finding the things. Very earlier, I discussed about this, what is development, and this definition is given in Sociology of Development. Still in Ranchi University, at honors level or PG level, there is a paper that is Sociology of Development, Vikas ka Samaj Shastra. And I am giving you a particular thinker, W.F. Ogburn. He is quoted in that book by Dr. K.K. Mishra in his book. Okay, so I am referring that definition and you will be comfortable to explain this definition. But it is very difficult when people hear that the development is possible in downward direction, negative direction, then they will be reacting that who has given this sort of definition? How far you are convinced with this definition? So you have to satisfy them that this definition is given by W.F. Ogburn and it is quoted in Sociology of Development, and that book is written by K.K. Mishra. So many thinkers are on Sociology of Development. So many books are published in Sociology of Development. But I have studied, that is why I am telling this sort of thing, that you will be quoting that book, Sociology of Development, विकास का समाजशास्त्र। ठीक है। सो अब तो हमको लगता है कि रूरल और डेवलपमेंट में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण समाज क्या है? सरल समाज है, जहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होती है। ग्रामीण समुदाय क्या है? जहाँ लोग लगभग कॉमन लाइफ ऑफ स्टाइल रखते हैं। कॉमन लाइफ स्टाइल होने से ये होता है कि लगभग उनकी सांस्कृतिक चीजें, उनके खान पान, उनके पहनावे, ये सारे सब कुछ जो है
बहुत कॉमन होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। और आप ये महसूस करते होंगे कि हमारे गांव में ऐसा होता है, लगभग लोग वैसा करते हैं। लेकिन अभी आप यदि नौकरी या प्रवास के कारण कहीं और रह रहे हैं तो देख रहे हो कि यहाँ तो वो चीजें नहीं है, थोड़ी बदली है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र कहने से मतलब है ऐसा समाज जहाँ की बातें बहुत सहज हो, सरल हो, लोगों में सबसे बड़ी बात कि आपसी घनिष्ठता हो, ठीक है। और आपसी घनिष्ठता कहने का मतलब है कि परस्पर निकटता हो। शहरों में वो नहीं होता है, शहरों में हम लोग प्रोफेशनल होते हैं, शहरों में हम लोग क्या है अपनी बातों तक जुड़े होते हैं, शहरों में हम बहुत ज्यादा निकटता में नहीं होते हैं। आपसे जितना काम है उतना काम किए, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये जो है हमारी रूरल के संदर्भ में, ठीक है। सो ये कुछ बातें रूरल और डेवलपमेंट पर। चलिए, अब इतनी सारी बातों के बाद अब जो परिवर्तन के गतिमान हैं, परिवर्तन के जो गतिज पक्ष हैं, डायनेमिक्स ऑफ चेंज इन रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में ये जो डायनेमिक्स है, परिवर्तन के जो प्रतिमान है, बदलते प्रतिमान है जो ग्रामीण भारत में देखने को मिलता है, हम उस पर ये 5वें ब्लॉक पर कंसंट्रेट करते हैं। ये 5वां ब्लॉक हम लोग का सो रूरल रूरल डेवलपमेंट के इस 5वें ब्लॉक में ये चीज हम लोगों को सो डिस्कस करना है। तो अब इस 5वें ब्लॉक पर चलते हैं। हमारे पास कन्हैया जुड़े हुए हैं। कन्हैया के यहाँ पीछे में जो है पेड़ खजूर का, ताड़ का भी दिख रहा है। सो लग रहा है कि ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के क्लास में है, ठीक है। हमारे साथ जीतू जीतू जुड़ गए हैं, ठीक है ना। सो जीतू हो गया है। उसके बाद जो है जीतू के बाद और कुछ लोग जो हैं और जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिनका सबका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं अभी, वो आप ठीक है, जो बीच में जुड़ते जाएंगे, हमको यदि ऐसा फ्लैश मिलेगा तो आपको बताते रहेंगे। चलिए, अब जो है डायनेमिक्स ऑफ चेंज इन रूरल इंडिया, सामाजिक परिवर्तन की बातें, ठीक है। और वो परिवर्तन जो है उसका गतिमान पक्ष, आप जानते हैं कि स्टैटिक मतलब स्थैतिक, स्थिति से संबंधित, स्थिर से संबंधित स्टैटिक, ठीक है। और उसका ठीक उल्टा क्या होता है अंग्रेजी में? डायनेमिक, ठीक है। तो ये जो चीज है आप दिमाग में रखें कि स्टैटिक कहने का मतलब क्या है और डायनेमिक कहने का मतलब क्या है। यहाँ आपको डायनेमिक्स ऑफ चेंज पर बात करना है। परिवर्तन के गतिज प्रतिमान क्या है शहरी ग्रामीण भारत में, उसको हम लोगों को डिस्कस करना है। तो हम लोग जो कुछ भी है इन बातों को जिक्र करेंगे। और अभी इसमें 4 यूनिट हमारे पास हैं, उस यूनिट को जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो आप असाइनमेंट लेकर के रखे होंगे तो उसके क्वेश्चंस आप बताएंगे, मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा और कैसे क्या कुछ बनाना है वो बता दूंगा। अब सोशल चेंज पहला यूनिट है, इसमें 4 यूनिट है। 4 यूनिट में पहला यूनिट है सोशल चेंज और मोबिलिटी एंड मोबिलाइजेशन, ठीक है। सोशल चेंज क्या है, सामाजिक परिवर्तन है क्या, सबसे पहले इसको समझना चाहिए। ये सब सारे सोशियोलॉजी के टॉपिक हैं, समाजशास्त्र में आपको पढ़ने को मिलेंगे। यदि किसी के पास समाजशास्त्र की कोई बुक मिल जाए तो ये सब आसान होएगा। और हम आपको रेफरेंस के लिए, आपको यदि सुविधा से मिल जाए तो समाजशास्त्र में विद्याभूषण सचदेवा, VS सचदेवा, इसकी बुक यदि आप ले सकते हैं तो हिंदी में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है। और जो कंसेप्ट अभी हम इसमें बात करने जा रहे हैं, लगभग लगभग सारे कंसेप्ट आपको उसमें मिलेंगे। VS सचदेवा हिंदी में भी है, विद्याभूषण सचदेव और अंग्रेजी में भी है। ये बुक बहुत प्रोमिनेंट बुक है, बहुत सारा कवरेज है। यदि आपको उपलब्ध हो तो जरूर उसको देखिएगा। अब हम चलते हैं, सामाजिक प्रतिमान क्या है, सामाजिक परिवर्तन क्या है, सोशल चेंज क्या है, और सोशल चेंज में मोबिलिटी और मोबिलाइजेशन क्या है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो उदाहरण से हम लोग बात करें, सामाजिक परिवर्तन क्या है? पूर्व की दिशा, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, पूर्व की दशा से बाद की दशा, दशा हम बोल रहे हैं, उसमें होने वाला परिवर्तन जो है
वो सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, कहीं पर पहले जैसी दशा थी, उसके बाद यदि आप देखेंगे कि वहां बदलाव आ गया है, तो वो सामाजिक परिवर्तन है, समाज के संदर्भ में। समाज के संदर्भ में यदि पूर्व की दशा और बाद की दशा में जो बदलाव आपको दिख रहा है, वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, अच्छा, अब सामाजिक परिवर्तन, आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। आप किसी के कहने से उसको रोक नहीं सकते। प्रकृति अपने मुताबिक परिवर्तन करती है। ठीक है, कभी जा रहा है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, कभी कोरोना है, कभी इबोला है, कभी सार्स है, कोई वायरस है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ठीक है, वो आपके नियंत्रण से नहीं चलता, प्रकृति अपने मुताबिक चलाती है, नेचर। ठीक है, सो समाज के संदर्भ में ये परिवर्तन यदि है तो सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, पहले मैंने परिवर्तन को बताया। परिवर्तन क्या है? पूर्व की स्थिति से बाद की स्थिति में जो बदलाव है उसको क्या बोलते हैं? परिवर्तन बोलते हैं। और वो परिवर्तन यदि समाज के संदर्भ में है तो उसको सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, ये सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, अच्छा, अब उसमें सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी दो पक्ष आपको देखने को मिलेंगे। क्या दो पक्ष? सबसे पहला है मोबिलिटी। मोबिलिटी की हिंदी होती है गतिशीलता। तो गतिशीलता, क्या गतिशीलता? कौन सा गतिशील है? आप जानते हैं कि आपके कहने से समाज जो है उसकी गति नहीं रुक जाएगी, वो जो है अपने मुताबिक अपनी गति में रहता। ठीक है, सो आपको क्या करना है? आपको उस समाज की गति के साथ यदि आप गति में गति मिला करके चल रहे हैं तो आप परिवर्तन के परिणामों को, आप यदि सकारात्मक है तो आप उसको अपनी गति दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि वो परिवर्तन सही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस गति से अपने आप को अलग करते हुए उसके लिए कुछ सुधारात्मक काम करने पड़ेंगे। और आप जो है उस सुधार के लिए हो सकता है कि सामाजिक आंदोलन भी चलाना पड़ता है। ठीक है, मूवमेंट्स, जिस पर हम लोग कल बात कर रहे थे। हम लोग कल पीजेंट मूवमेंट पर थोड़ा ज्यादा बात कर रहे थे। ठीक है, सो मोबिलिटी क्या है? मोबिलिटी जो है, गतिशीलता जो है, वो दो प्रकार की। ठीक है, और वो दो प्रकार की गतिशीलता, उसमें क्या? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है? उदग्ध, जो अपवर्ड है। ठीक है, और अपवर्ड यदि है तो उसमें डाउनवर्ड भी संभव है। एक वर्टिकल, यदि आप कोई पोल खड़ा करते हैं तो आप उस पर ऊपर भी जा सकते हैं और उस पोल से नीचे भी आ सकते हैं। और बहुत बढ़िया, कन्हैया के पीछे में तार का पेड़ है। सुबह सुबह जो है कुछ लोग ऊपर चढ़ते हैं और सुबह सुबह कुछ लोग ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है ना? वो ऊपर से नीचे आने वाले जो लोग हैं आप जानते हैं, और बैसाख में उसका डिमांड थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो देखिए कन्हैया के पीछे में वो खजूर का पेड़ दिख रहा है, तार का पेड़ दिख रहा है। ठीक है कन्हैया, आवाज मिल रही है कन्हैया? जी सर, देखिए सर। हाँ दिख तो रहा है ये, और आपके साथी सब भी देख रहे हैं। ठीक है ना? मंदिर है सर। सो हाँ मंदिर है, और उसके पीछे खजूर का पेड़ भी दिख रहा था। ठीक है, यहाँ तो पत्थर का चलिए, बगीचा है सर। हाँ हाँ हाँ, चलिए। तो ये चीज जो था, जब हम वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, ठीक है, जब ऐसी बातें करते हैं तो ये वर्टिकल सोशल मोबिलिटी है। और वर्टिकल का मतलब ऊपर की ओर जाने वाला परिवर्तन जो है वो। अच्छा, उसके बाद नीचे की ओर भी, उसमें वर्टिकल यदि है तो नीचे की ओर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरा जो सोशल मोबिलिटी है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलिटी दो प्रकार की, सोशल मोबिलिटी दो प्रकार की, एक वर्टिकल सोशल मोबिलिटी और एक हॉरिजेंटल सोशल मोबिलिटी। ये चीज जो है, ये कंसेप्ट देने वाले पी ए सोरोकिन एक सोशियोलॉजिस्ट है। पी ए सोरोकिन, पिट्रिम अलेक्जेंडर सोरोकिन। ये पिट्रिम अलेक्जेंडर सोरोकिन जो है, उन्होंने सोशल मोबिलिटी का कंसेप्ट दिया। और वो मोबिलिटी जो है वो वर्टिकल बताते हैं और सोशल हॉरिजॉन्टल बताते हैं। तो वर्टिकल जो है उसमें फिर वो दो पार्ट बताते हैं।
अपवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, ठीक है। और दूसरा बताते हैं डाउनवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। ये दो चीजें बताते हैं। तो पहले तो पीए सोरोकिन ने क्या कहा, सोशल मोबिलिटी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, one vertical social mobility, another horizontal social mobility. Again, he describes vertical social mobility is upward vertical social mobility and downwards vertical social mobility. ओके अब चलिए, अब इसको और हॉरिजॉन्टल में कोई और डिफिनेशन नहीं बताते और कोई वो डिस्क्रिप्शन नहीं बताते। तो पीए सोरोकिन का ये कंसेप्ट थोड़ा सा बात कर दें। जब वर्टिकल सोशल मोबिलिटी पर हम लोग बात करते हैं तो वर्टिकल सोशल मोबिलिटी क्या है, जब कोई आदमी मान लीजिए टीचर है और वो जेपीएससी की तैयारी करते करते वो क्या हो गया, वो टीचर से एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, उसका वीडियो में सिलेक्शन हो गया, तो वो वर्टिकली अपवर्ड गया, ठीक है ना। उसका प्रोफाइल अब टीचर का नहीं रहा, एक एडमिनिस्ट्रेटर का रहा, ठीक है। सो ये हो गया वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का अपवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। टीचर से उसका क्या हो गया, चेंज होकर के हो गया टीचर से चेंज होकर के वो हो गया अब एडमिनिस्ट्रेटर, ये वर्टिकल हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ जो है उसमें ऐसा भी होता है कि किसी एडमिनिस्ट्रेटर को किसी सजा में सीबीआई वालों ने रेड कर लिया, किसी तरीके से उनको सो सजा दिला दिया, और सजा दिलाया तो फिर वो जो है अब वो चपरासी भी नहीं रहे एडमिनिस्ट्रेटर से। देखते होंगे कितने एडमिनिस्ट्रेटर जो है सो प्यून भी नहीं रहते हैं और उनकी नौकरी बर्खास्त हो जाती है। तो अब क्या है, वो डाउनवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का उदाहरण। एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो चोरी चमारी के कांड में वो बर्खास्त हो गया, डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी, डाउनवर्ड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी, ठीक है। सो ये हो गया। उसके बाद आगे की चीजें हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी क्या है, ये सोरोकिन कहते हैं कि एक टीचर है, हम उदाहरण से इसीलिए बताते हैं कि आपका कंसेप्ट सब साफ होता चलेगा कि सोशल मोबिलिटी है कहाँ। ये आपकी किताबों में इस तरीके से नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उसमें कुछ अलग से जो आपको दे सकते हैं उसका लाभ आपको मिले। हमारे साथ इंदर देवराज जुड़ गए हैं, थैंक यू इंदर। इंदर आपको कहाँ से आप हैं इंदर, हमारी आवाज मिल रही है? यस सर, गिरिडीह से सर। गिरिडीह से, चलिए वेलकम। सो हम लोग जो हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी जो है उसका उदाहरण ये है कि कोई एक प्राइमरी टीचर में सिलेक्शन हुआ, ठीक है, और वो उस समय बेसिक ट्रेनिंग किया हुआ था, बाद में वो जो है बीएड वगैरह कर लिया, बीएड करने के बाद जो है सो वो हाई स्कूल वाले टीचर में दिया, उसमें उसका हो गया। और बहुत सारे लोगों का अभी +2 में हो गया, इग्नू से ही बीएड किए हुए थे, प्राइमरी टीचर में पहले से थे, अभी +2 में उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो वो जो है अब टीचर ही हैं, लेकिन वो हाई स्कूल के टीचर हो गए, इंटर कॉलेज के टीचर हो गए। तो ये क्या हुआ, ये जो है हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी हुई, क्षैतिज क्षितिज क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता इसको बोलते हैं हिंदी में। तो आप यदि इस तरीके से कहीं भी जब सोशल मोबिलिटी के बारे में ऐसा दिया जाएगा तो व्हाट इज मोबिलिटी, देन सोशल मोबिलिटी, what Petrim A. Sorokin has given vertical social mobility, then horizontal social mobility. Again, vertical social mobility has two types. This is upward and downward. So, if you write these things in your language, then the evaluator will be thinking that he has studied something more than the text which has been provided by the IGNOU. So, for this reason, I am giving this sort of thing. Otherwise, social mobility जो है इतना विस्तार में आपको क्या बात करना था, लेकिन इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मोबिलिटी यदि है तो मोबिलाइजेशन होता है, मोबिलाइजेशन कैसे होता है इस पर थोड़ी सी बात करें। तो मोबिलाइजेशन रोशनी ज्वाइन की है, सो वेलकम रोशनी। सो मोबिलाइजेशन कैसे होता,
जब आप परिवर्तन के लिए लोगों को कन्विंस करते हैं और वो आपकी बातों से तैयार होते हैं, तो आप सामान्य अर्थों में बोलते होंगे कि अच्छे परिवर्तन के लिए लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। अब लोग जो है जनधन अकाउंट खोलने में, बैंक जाने में अब कोई परहेज नहीं करते हैं। लोग उज्ज्वला योजना का लाभ लेने में गांव में कोई परहेज नहीं करते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है उसका से कोई परहेज नहीं करते हैं। आयुष्मान भारत के स्कीम में लोग जा करके इनरोल कराते हैं, अपने परिवार के लिए 5 लाख का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ये सब जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो ग्रामीण भारत में परिवर्तन की दिशा को तय कर रहा है और इस तरीके से ये सोशल मोबिलाइजेशन का काम कर रहा है। हम वो चीज नहीं बताना चाह रहे हैं जो ब्लॉक में आपके पास है, हम उसके कंसेप्ट को बात करते हुए आपको नई चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। सो शिवानंद जो है थोड़ा सा ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, अभी हमको दिख रहा है। सो हाफी पर हाफी आ रही है, ठीक है ना। सो यदि क्लास में थकावट हो रही है तो हम लोग बंद करें। शिवानंद नहीं सर, थकावट जी सर। हाँ, क्या थकावट जैसा लग रहा है कुछ? बीच बीच में थोड़ा पानी नहीं सर, पी लीजिए। रात में लेट सोए थे सर। अच्छा कोई बात नहीं, तो ये रह गया। और इस तरीके से सोशल मोबिलिटी और मोबिलाइजेशन की बातें। उसके बाद एम्पावरमेंट क्या है? एम्पावरमेंट जो है उसको सशक्तिकरण के रूप में हम लोग खूब बढ़िया से बार बार जानते हैं। ये महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए जो है सशक्तिकरण की बात बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है। आज युवाओं को, नवयुवकों को, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सशक्त करने की बात है। वो शिक्षा के द्वारा, सूचना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कौशल के द्वारा, और वो सशक्त करेंगे जिसको ग्रामीण भारत में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्या होएगा कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगे, वो भारत के लिए योगदान करने लायक हो सकेंगे। ये कुछ बातें हैं जो आपको एम्पावरमेंट के लिए, तो खास करके जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो महिला सशक्तिकरण के लिए ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि आधी आबादी से संबंधित है और हमारे मन में कूट कूट करके बैठा हुआ है कि महिलाएं जो है बहुत अशक्त हैं और उनको सशक्त करने की जरूरत है। इसीलिए बार बार महिला सशक्तिकरण की बातें पूछी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं के अलावे जो है पुरुष जो है वो, उनको सशक्त करने की जरूरत नहीं, दोनों पक्ष को सशक्त करने की जरूरत है, ठीक है। तो सशक्तिकरण को बात करना है। उसके बाद है जो तीसरा यूनिट है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें तीसरा यूनिट है, हम थोड़ा थोड़ा IEC शॉर्ट में लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। हम तीनों को एक बार बात कर देते हैं कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज एजुकेशन और व्हाट इज कम्युनिकेशन, और बाकी आपके पढ़ने के लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन जो है वो एक डाटा से, यदि इंफॉर्मेशन को आज के संदर्भ में जोड़ करके आपको उदाहरण दे दें तो बहुत आसान हो जाएगा। जब कहीं भी आप फील्ड से जाते हैं तो फील्ड वर्क करने के लिए जाएंगे, दोनों आदमी को जाना है, जो PGDRD में है, जो MARD में है। जब इससे आप जाते हैं ना डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो फील्ड से आपको रॉ डेटा मिलता है। 100 लोगों से आप बात करके आए हैं किसी एक टॉपिक पर, तो वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है उसको जब तक आप टेबल के रूप में टेबलाइज नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे और जब तक उसको समराइज नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ये हुआ जो कहने की स्थिति आपकी बनती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन। मतलब डाटा जो है एक रॉ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप कंप्यूटर के सेंस में समझ सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में फील्ड से लाया हुआ डाटा जो कुछ भी है, उसको यदि आज हम कुछ कहना चाहते हैं उस पर कि उस गांव की स्थिति क्या है जहां से हम 100 लोगों से बात करके लौटे हैं क्वेश्चनायर के जरिए, तो वो कहने की स्थिति जो है वो है इंफॉर्मेशन। तो इस सेंस में
डाटा को इंफॉर्मेशन में कैसे चेंज करते हैं। इंफॉर्मेशन एक कंक्रीट बात है, जबकि डाटा जो है एक रफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। वो इंफॉर्मेशन डाटा से ही निकलता है, लेकिन डाटा जो है एक मिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, कंक्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है। तो कंक्रीट बनाने के लिए हम डाटा को क्या करते हैं, टेबुलाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फाइनली उससे हम कुछ कहने की स्थिति में आते हैं। मान लीजिए आप किसी गांव का गए स्टडी करने के लिए, एजुकेशन लेवल क्या है, तो 100 लोगों से आप बात करें, कुछ बुजुर्गों से बात करें, कुछ जो यंग हैं उनसे बात करें, कुछ महिलाओं से बात करें, कुछ पुरुषों से बात करें, कुछ बच्चों से बात करें, तो आपको पता चला कि यहाँ पर 2 ही आदमी 100 आदमी में से हमको ग्रेजुएट्स मिले, पोस्ट ग्रेजुएट 1 आदमी मिले, और बाकी इंटरमीडिएट 10 मिले, और बाकी जो है 50 लोग जो है सो हमको मैट्रिकुलेट मिले। तो 50 और 10 इंटरमीडिएट 60 और 2 ग्रेजुएट मतलब 62 और 1 पोस्ट ग्रेजुएट 63। तो 63% लोग जो है सो पढ़े लिखे मिले हमको, और रेस्ट जो है 37% जो है वो निरक्षर मिले, इलिटरेट मिले। तो हम ये कहने की स्थिति में होते हैं कि वहां पर भारत सरकार जो नेशनल एवरेज लिटरेसी का बताती है उससे भी कम लिटरेसी है। ये एक इंफॉर्मेशन है। क्लियर हुई बात? डाटा से इंफॉर्मेशन कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे निकालते हैं, समझ में आया? हम फील्ड में जाकर के 100 आदमी से तो बात करके अपना क्वेश्चनर भर करके चले आए हैं, और हमको कोई रास्ते में मिल जाए तो बताएगा, पूछेगा कि अच्छा ये बात बताइए ना, सो उस गांव का क्या हालचाल है, सो क्या है लिटरेसी का, तो आप क्या बोलेंगे? अभी तो 100 आदमी से हम बात करके आ रहे हैं, लेकिन अब वो जो डाटा है उसको तो पहले हम एनालाइज करेंगे, टेबलाइज करेंगे, तब तो कुछ कहने की स्थिति बनेगी। तो अभी तो हम नहीं कह सकते हैं आपको, ठीक है ना। हमको बैठने दीजिए, शाम को हम 100 के डेटा को एनालाइज करेंगे, टेबलाइज करेंगे, समराइज करेंगे, कंक्लूड करेंगे, ये सब वो यूज करेगा, और उसके बाद कहेगा क्या फाइनली कि नहीं हमने देख लिया, टेबलाइज किया था, डाटा को एनालाइज करने के बाद पता चला है हमको कि वहां पर नेशनल एवरेज जो है उससे भी कम लिटरेसी है। 67% ही 63% ही लोग जो है वो हमको पढ़े लिखे मिले, जो मैट्रिक से लेकर के इधर में है, और बाकी लोग तो निरक्षर है। तो इस तरीके का जो कुछ भी आप बात कहेंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड बाय यू फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। तो डाटा और इंफॉर्मेशन। सर डायनामिक्स ऑफ चेंज में फर्स्ट पॉइंट सोशल चेंज बताए थे, सेकंड क्या था सर? सेकंड इसी में सोशल चेंज के अंतर्गत मोबिलिटी एंड मोबिलाइजेशन है। तो उसका सेकंड में यही था, मोबिलिटी एंड मोबिलाइजेशन। हाँ, नहीं सेकंड नहीं है, सोशल चेंज के अंतर्गत उसी यूनिट में, उसी चैप्टर में सोशल चेंज में मोबिलिटी और मोबिलाइजेशन है, और दूसरा जो यूनिट है वो एम्पावरमेंट है, सशक्तिकरण है, और तीसरा यूनिट जो है जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, IEC, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन को हमने बात किया। अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन के तो हम एजुकेशन पढ़ाते पढ़ाते इधर नौकरी में चले आए, B.Ed M.Ed को ही पढ़ाते थे, तो इधर इंफॉर्मेशन और एजुकेशन की अब बात करेंगे। तो एजुकेशन क्या है? एजुकेशन जो है वो क्या है? सिंपल बात, एकदम बहुत बड़े बड़े डिफिनेशन आपको मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए मैन, ठीक है। लेकिन इतना लंबा डिफिनेशन आपको याद नहीं रहेगा। आपको एक डिफिनेशन, एक छोटा सा रूसो का डिफिनेशन बताते हैं जो 3 वर्ड का है, और वो बोलते हैं कि एजुकेशन इज लाइफ, ठीक है, लिख लीजिए, शिक्षा ही जीवन है। रूसो का स्पेलिंग थोड़ा अंग्रेजी में गड़बड़ सरबड़ है, तो हम बता दे रहे हैं ROUSSEAU, ROUSSEAU। हिंदी में जब आप लिखते हैं तो रूसो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लेंगे। लेकिन एजुकेशन का इतने सालों, 10 साल मैंने B.Ed M.Ed को पढ़ाया, 10 सालों में कभी हमको इससे छोटा डिफिनेशन नहीं मिला। एजुकेशन इज लाइफ, मतलब शिक्षा ही जीवन है हिंदी में। मतलब यदि आप शिक्षित नहीं है तो जीवन बेकार है, बस सिंपल सेंस ये।
बहुत बड़े थिंकर हैं एजुकेशन के, और वो बोलते हैं कि शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा जो है यदि नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके आप ये समझें कि शिक्षा को उन्होंने जीवन से जोड़ करके किस तरीके से इम्पोर्टेंट बताया है। ठीक है, सो आप जानते हैं कि शिक्षा की बातें क्या है। शिक्षा अनवरत विकास की प्रक्रिया है। ठीक है ना, शिक्षा जो है ना, शिक्षा वही है जैसे अपने उपनिषदों में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जो विमुक्त करती है। विमुक्त किस बात से? मानव को बंधनों से विमुक्त करती है। इसीलिए हम लोग शिक्षा को क्या बोलते हैं? उपनिषद में लिखा गया है। बहुत सारे स्कूलों में आप देखते होंगे लिखा हुआ, बहुत सारे विद्यालयों में, महाविद्यालयों में लिखा हुआ देखते होंगे। उनके जो लोगो रहते हैं उसमें देखते होंगे कि सा विद्या या विमुक्त। ये विद्या कैसी है? जो विमुक्त करे। ठीक है ना, तो सा विद्या या विमुक्त, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग अपने एजुकेशन के संदर्भ में, आपको ये सब जो बातें हम बता रहे हैं ना, वो आपके ब्लॉग में नहीं मिलने वाली है। ठीक है, आप हमसे जुड़े हैं तो आपको कैसे कुछ अलग से इनपुट हम दें जो आप दूसरों से अलग अपने असाइनमेंट में, अपने एग्जाम में लिख पाए, ये इस क्लास की खासियत होनी चाहिए। ठीक है ना, तो एजुकेशन का डेफिनेशन आपको रूसो के नाम से लिख लेना है, शिक्षा ही जीवन है। जो आदमी अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं वो एजुकेशन इज लाइफ, शिक्षा ही जीवन। ठीक है, रूसो का मैंने स्पेलिंग बता दिया। और उपनिषद में शिक्षा की जो बात कही गई है वो ऐसे कही गई है कि सा विद्या या विमुक्त। विद्या वही है जो मानव को बंधनों से विमुक्त करती है, मतलब अंधकार से विमुक्त करती है, मतलब अज्ञानता से विमुक्त करती है। इसको हम लोग शिक्षा बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो डिफिनेशन है वो काफी लंबा है, इसलिए हम रिपीट तो कर सकते हैं। एजुकेशन इज परफेक्शन ऑफ मैन ऑलरेडी प्रेजेंट, एंड एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए मैन। ठीक है, देवघर में यदि आना हो रहा हो तो यदि रामकृष्ण मिशन के स्कूल के तरफ जाएंगे, जिधर रामकृष्ण मिशन का सब ऑफिस और कैंपस सब है, वहां पर ये लाइन जो है, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन ए मैन, मतलब वो कहते हैं कि एजुकेशन की बात सभी मानवों में वर्तमान होती है, ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, लेकिन हमको क्या करना है? मैनिफेस्ट करना है, उसको बाहर निकालना है, घोषित करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रयास करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं तो जिसके गार्जियन भैंस की डोर पकड़ा दिए तो चरवाहा बन जाता है, और उस समय तो बच्चा जो है वो ज्ञानी नहीं होता है। तो उस बच्चे को पेरेंट्स के पार्ट में क्या करना होता है? उस बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराना होता है। और जब प्राइमरी पूरा किया तो अपर प्राइमरी, उसके बाद हाई स्कूल, फिर इंटर और ग्रेजुएशन। तो जब ग्रेजुएशन में पहुंचता है, इंटर में पहुंचता है, तो बच्चा जो है तो थोड़ा सा सो अपने ही वो समझने लगता है, तब बहुत ज्यादा उसको आगे की जरूरत नहीं है। इसमें से हम ये बताना चाहेंगे कि आपको जिस लेवल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के लर्नर हैं, आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि चलो चलो स्कूल में एडमिशन कराते हैं, कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। आपने खुद से किसी से सुना होगा कि इग्नो में सो डेली डेली क्लास नहीं करना पड़ेगा, MA RD कर सकते हैं, PGDRD कर सकते हैं। तो आपने खुद से एडमिशन ले लिया समझ करके, ये ज्ञान विज्ञान अब आपका विकसित हो चुका है, लेकिन उस बच्चे का नहीं होता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि इग्नो में जो कोई भी एडमिशन लेते हैं वो स्वेच्छा से लेते हैं, और किसी को हम जबरदस्ती इधर इग्नो में एडमिशन लिया हुआ नहीं पाते हैं। हम पूछते हैं, जब आपसे मिलते जुलते हैं तो हम पूछते हैं कि इसमें से कौन है जो जबरदस्ती इधर एडमिशन ले लिए हैं, किसी को पकड़ करके एडमिशन कौन करवा दिया है? बोलते हैं नहीं नहीं, हमको कोई नहीं, पकड़ करके कोई नहीं कराया। ठीक है ना, तो ये कुछ बातें हैं। सो एजुकेशन की बातें। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन मतलब संचार। संचार का मतलब क्या होता है? सिंपल बात कि एक एंड से दूसरे एंड में अपने संदेश को भेज देना किसी चैनल के माध्यम से, वो क्या है? कम्युनिकेशन, संचार। इट मीन्स इन ए कम्युनिकेशन देयर इज ए सेंडर एंड another is receiver. In between, sender gives a message to the receiver, but he needs a channel. That channel may be mobile or
face to face, very shorter distance. That channel may be radio, TV or this Skype. समझ में आ रही बातें? So ये क्या है? ये क्या है कि ये हमारा संचार है। संचार का मतलब एक छोर से दूसरी छोर तक अपने संदेश को प्रवाहित करना, और उसके लिए क्या चाहिए? आपको एक चैनल चाहिए। जहां हम बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में होते हैं वहां संचार के चैनल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जहां ये बातें नहीं होती है वहां क्या होता है? हमको एक मोबाइल की जरूरत होती है, या टीवी की जरूरत होती है, या रेडियो की जरूरत होती है, और प्रिंट मीडियम पर बात करें तो अखबार, मैगजीन, जर्नल्स, ये भी संचार के माध्यम है। हमने अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन की बात की। अब देख लीजिए हमको क्या करना है। इंफॉर्मेशन को यदि कम्युनिकेट करना है, हमारे पास जो सूचना है उसको यदि दूसरे को कम्युनिकेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वो जो आदमी रिसीव करने वाला आदमी है वो थोड़ा बहुत तो समझने लायक होना चाहिए, मतलब एजुकेशन होना चाहिए ना। हम उसको साक्षरता, शिक्षा की दर, ये वो फला चिला बताएंगे, लेकिन एजुकेशन का लेवल उसका नहीं है तो हमारी बातों को नहीं ले पाएगा, ठीक है। ये है हमारा IEC, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन। क्लियर? अब आप जो है इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे जो चैप्टर है, यूनिट, लास्ट यूनिट है, यूनिट 4। यूनिट 4 में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। यूनिट 4 में हम लोग क्या बात करते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट। हम आपको थोड़ा सा सरल करके बताएं कि रूरल डेवलपमेंट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है ना। सूचना प्रौद्योगिकी कैसे यूज करते हैं, हम कैसे प्रयोग करते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन को समझ गए, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है? मोबाइल की टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। सबका नंबर है बैंक में, तो बैंक में जनधन खाते में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में सबको 1,000 रुपए भेजे गए भारत सरकार के द्वारा। तो गरीबों को क्या हुआ? मोबाइल में झट से SMS आ गया, और वो SMS देखने के बाद वो उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए बैंकों में जाकर के प्रयास किए, ठीक है। ये हुआ इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ाना। आपके पैसे भेज दिए गए, ये रेडियो पर भी दिया गया, टीवी पर भी दिया गया, लेकिन उसको मोबाइल की टेक्नोलॉजी से वो खुद ही देख पा रहा है, सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, और वो दिखा करके मैसेज, देखिए ना मेरा पैसा 1,000 आ गया है, बैंक वाले आप हमको इस पैसे को दे दीजिए, निकाल दीजिए। इस कोरोना के समय में बहुत दिक्कत है। हम लोग जो है प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना सोचा। तो ये रूरल डेवलपमेंट में ये टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन की ये अभी तुरंत से उदाहरण है। लेकिन आप देखिए आज क्या हो गया है, हमारे पास जो है ई-नाम है, नाम सुने अभी? जो ई-नाम है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, अभी तुरंत लॉन्च हुआ है 10 दिन पहले। इसीलिए ये सब चीज यदि अपने उत्तर में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा तो आपका आंसर देखने वाला, आपकी कॉपी देखने वाला को लगेगा कि नहीं बच्चे जो हैं तो हमारे ब्लॉक जो 17 में लिखे गए हैं उसी ब्लॉक को लेकर के नहीं चल रहे हैं, वो जो है 2020 तक पहुंच चुके हैं। ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उस पर किसान अपना जो उत्पाद है उसको बेच सकते हैं। बहुत बड़ा मार्केट है राष्ट्रीय स्तर का। आप देखते होंगे कि किसानों के लिए एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, सैटेलाइट चैनल के जरिए किसान चैनल, डीडी का किसान चैनल, आप देखते हैं डीडी किसान, और डीडी किसान पर उनको स्टूडियो में बैठे हुए एक्सपर्ट जो है उनकी समस्याओं का समाधान बोलते हैं। टोल फ्री नंबर स्टूडियो से फ्लैश किया जाता है और उस टोल फ्री नंबर पर वो अपने खेतों में कीड़े क्यों लग रहे हैं हमारे फसल में, इसमें किस खाद का उपयोग करना चाहिए, इसमें किस बीज का उपयोग करना चाहिए, इस समय पटवन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट की एडवाइस जो कृषि वैज्ञानिक स्टूडियो में बैठे होते हैं उनसे लेते रहते हैं।
तो ये क्या है, रूरल डेवलपमेंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग है। ठीक है, ये है किसान, डीडी किसान। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो अब आप मोबाइल पर जो है वो डीडी किसान को देख सकते हैं। खेतों में है तो वहां पर डीडी किसान को देखे जा रहे हैं, और टोल फ्री नंबर जो है उसको तो कॉल करके आप पूछ रहे हैं। आपको यदि स्टूडियो से दिखाना है एक्सपर्ट को, तो आप तुरंत अपने मोबाइल से कनेक्ट करके दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे यहाँ फसल की ये दिक्कत हो गई है, आलू में कीड़ा लग गया है। ठीक है ना, आम है, ये बहुत सारे जो छोटे छोटे आम के टिकोले वो गिर गए हैं। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आज हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि कुल मिला जुला करके रूरल डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो डायनेमिक्स ऑफ चेंज इन रूरल इंडिया। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से आज कैसे साहेबगंज और गोड्डा और जामताड़ा और गिरिडीह से जुड़े हुए हैं, दुमका से जुड़े हुए हैं। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग है, और ये काम हम गांव में बैठ करके भी कर सकते हैं, शहर में बैठ करके भी कर सकते हैं। शहर के गांव को, शहर से गांव को जोड़ सकते हैं, और जो चेंज है, डायनेमिक्स ऑफ चेंज इन रूरल इंडिया, उसको हम लोग साकार कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे शेयर करनी थी ये 5वें ब्लॉक में। और